Hello and welcome to the Virtual Learning Network. This is session number 3 on business communication, and in this session the topic that we are going to study about is cross-cultural communications in business. The topics that we are going to cover in this particular session are a communication model, what is culture, good cross-cultural communicators, high context cultures and low context cultures. Let us first understand what is communication. Well, communication is sending a message, and of course sending a message that is perceived the way you have sent it by the receiver. So communication is nothing but of course a channel of sending your message across. So communicating your ideas, your thoughts, your opinions, that is what we do the whole day long. So 75% of our time what we are doing is communicating. तो communication जो है वो क्या है? Simple communication is sending an idea, a thought or an opinion from one source to the other. So like in the figure, there's a sender is sending a message, and there's an audience is certainly receiving the message, and of course this also involves a channel through which a message is sent, and of course the sender will give, rather the receiver will give the feedback in turn. So that is the communication model. Now in order to make communication effective, it is very essential that the message intended should be the message received, right? तो जिस तरह से आप मैसेज को भेजते हैं, जिस तरह का मैसेज या जो भी आप सोच के भेजते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं कि इसी फॉर्म में आपका मैसेज रिसीव हो, उसी फॉर्म में आपके जो रिसीवर हैं उनको मैसेज आपका एग्जैक्टली वैसा ही मिलना चाहिए. उसके लिए क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो. सो लाइक इन द फिगर यू कैन सी देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट, एंड अंडर द कॉन्टेक्स्ट देयर शुड बी अ communication channel, and of course when the feedback is sent, then the sender should get the feedback from the receiver in order to understand whether the intended message is perceived the way it was intended or not. Now what is culture? Culture provides patterns of acceptable behavior and beliefs. जो culture होती है वो patterns बनाती है किसी तरह के. अब different cultures, अगर आप देखोगे different countries की different cultures होती हैं, right? तो culture क्या करती है? Culture basically pattern बनाती है of behavior and beliefs. अलग behavior होता है लोगों का हर culture के, और अलग बिलीव्स भी होते हैं. जैसे रिलीजियस बिलीव्स अलग है, कईयों की नेशनैलिटी अलग है, कईयों के जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं वो अलग हैं. तो इन 3 चीज़ों पर ही कल्चर बेस्ड होती है. क्या 3 चीज़ें हैं? दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं. नेशनैलिटी, रेस एंड रिलीजन एंड हिस्टोरिकल रूट्स. तो इन चीज़ों पर कल्चर डिपेंड करती है. दैट इज कल्चर. नाउ व्हाट इज, अब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड इंटरकल्चरल कम्युनिकेटर्स हों जो अपनी कल्चर के साथ साथ दूसरे के कल्चर को भी कोप अप करके चले. नाउ आपने देखा होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे इंटरनेशनल हमारे, अगर ऑफ कोर्स इफ़ वी हैव सम इंटरनेशनल टाइप्स, तो बाहर से भी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे कंट्रीब्यूट अ लॉट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन वो कंट्रीब्यूशन तभी तक कंस्ट्रक्टिव रहेगा जब तक, until and unless they really do not get into the hands of bad intercultural communicators. तो अगर आप गुड इंटरकल्चरल कम्युनिकेटर हैं तभी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होगी, एंड दैट टू दी कल्चरल कम्युनिकेशन. सो फॉर दैट आपको गुड इंटरकल्चरल कम्युनिकेटर बनने के लिए, वन, यू शुड बी अवेयर अबाउट द वैल्यूज एंड बिहेवियर्स which are, and you should not always be right, and you should be flexible and open to change. values and behaviors पता होने चाहिए लोगों के, और you should be flexible and you should be open to change, right? Now good intercultural communicators वो भी होते हैं जो sensitive हैं to verbal and non-verbal behavior. कई बार क्या होता है, अगर आपको किसी और की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, लेकिन उनके जो बिहेवियर है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके जेस्चर्स, उनके हैंड मूवमेंट्स, उनका उठना बैठना चलना, किस तरह से वो
आपको कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो गुड इंटरकल्चरल कम्युनिकेटर्स होते हैं वो इन चीज़ों को नोटिस करते हैं और इन चीज़ों के लिए सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि बिकॉज यू नो लाइक दे से लव इज सेम इन एवरी लैंग्वेज एंड सो इज अ स्माइल। सो व्हेन यू आर स्माइलिंग तो आपको आधे से ज़्यादा आप चीज़ें पता चल जाती हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बियॉन्ड लैंग्वेज बियॉन्ड कल्चर होता है। इट्स जस्ट दैट गुड इंटरकल्चरल कम्युनिकेटर के लिए सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है हर एक पर्टिकुलर छोटी छोटी सी चीज़ पर। एंड दे ऑल्सो शुड बी अवेयर ऑफ द वैल्यूज बिलीव्स प्रैक्टिसेस ऑफ अदर कल्चर्स। उनको पता होना चाहिए कि और कल्चर्स में वैल्यूज बिलीव्स और प्रैक्टिसेस किस तरह की होती हैं और क्या होती हैं, राइट। नाउ दे शुड ऑल्सो बी सेंसिटिव टू डिफरेंसेस विद इन कल्चर्स, कि किस तरह से एक कल्चर के बीच में ही बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे को भी बहुत सेंसिटिवली लेना चाहिए उनको। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स, यहाँ पर आ जाता है हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स। लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स। नाउ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैसेज कॉन्टेक्स्ट रादर देन फ्रॉम कंटेंट। जो मैसेज का कॉन्टेक्स्ट होता है, जो मैसेज का कहने का कॉन्टेक्स्ट है, उससे इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसी को ही समझते हैं फ्रॉम हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स एंड प्रेफर इनडायरेक्टनेस, पोलाइटनेस एंड एम्बिग्यूटी। इसके अंदर क्या होता है, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में जो होते हैं ज़्यादातर एशियन, लैटिन अमेरिकन और मिडिल ईस्टर्न जो कल्चर्स हैं ये बहुत हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स हैं इन जगहों पर। और इन जगहों पे जो कल्चर्स हैं वो मैसेज के कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं और ना कि कंटेंट पे, कि उससे मीनिंग क्या आ रहा है उस पर्टिकुलर। सो इट डजंट मैटर कि क्या लैंग्वेज है, क्या ओरिजिनलिटी है उसकी, बट व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। So it also prefers indirectness, politeness and ambiguity, convey little information explicitly। इसके अंदर कम वर्ड्स में ज़्यादा इंफॉर्मेशन या कम वर्ड्स में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है। रिलाई हेविली ऑन नॉन वर्बल साइंस, और ये जो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स होती है वो ज़्यादातर रिलाई करती है नॉन वर्बल साइंस पर। Now लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स होती हैं यूरोपियन कल्चर्स, स्कैंडिनेवियन कल्चर्स एंड नॉर्थ अमेरिकन कल्चर्स। इन जगह पे क्या होते हैं, ये कल्चर्स रिलाई ज़्यादातर करते हैं कंटेंट पर रादर देन कॉन्टेक्स्ट। इसमें कंटेंट देखा जाता है कि कंटेंट क्या है, लिखा क्या हुआ है, एग्जैक्टली आप क्या बात कर रहे हैं, सो उसको देखा जाता है। एक्सप्लिसिटली स्पेल आउट इन्फॉर्मेशन को ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते हैं और स्पेल आउट करते हैं बेसिकली। इनका जो होता है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में वैल्यू डायरेक्टनेस होती है, सी इनडायरेक्टनेस एज मैन्युपुलेटिव, और यहाँ पर जो इनडायरेक्टनेस होती है वो बहुत मैन्युपुलेटिव होती है। वैल्यू रिटन वर्ड मोर देन ओरल स्टेटमेंट्स होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ low context cultures. Now some cultural scenarios, let us have a look at some cultural scenarios of Japan, China, India and Mexico. So first case study is the Japanese case study. Now to help her American company establish a presence in Japan, Mrs. Torres wants to hire a local interpreter who can give advice on her business customs. Miss Tomari has superb qualifications on paper, but Mrs. Torres tries to probe about her experience. Miss Tomari just says, I will do my best. I will try very hard. She never gives details about any of the previous positions she has held. Mrs. Torres begins to wonder if Mrs. Tomari's resume is inflated. Now here, सिंपली अगर आपने ये स्टोरी अगर ये एक इंस्टेंस या केस स्टडी अभी आपने सुनी, इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेपर के कंटेंट पे नहीं जा रहे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पेपर के कंटेंट पे जा रहे हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जा रहे। बेसिकली यहाँ पर जो है मिसेस टोमारी वेल रेड है, एक्सपीरियंस्ड है, पेपर पे एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस बता नहीं पा रही हैं मिसेस टॉर्स को, जो कि एक जापानीज है। लेकिन मिसेस टोमारी इज सेइंग दैट यू नो शी कैन डू हर बेस्ट, बट अगेन व्हाट मिसेस टॉर्स रीड्स दैट शी रियली वांट्स मिसेस टोमारीज the way everything is mentioned in the resume, so it should be justifying. Her words should also be justifying what she is exactly saying. So that is what is important in Japan for Mrs. Torres and according to the case study. And now let us see a case study that happened in China.
Stan Williams wants to negotiate a joint venture between his American firm and a Beijing-based company. Stan Williams को क्या करना है, उसे negotiate करना है एक joint venture अमेरिकन फर्म के बीच में और एक बीजिंग बेस्ड फर्म के बीच में. तो आपने देखा यहाँ पर भी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. He asks Tang Sen Lee if the Chinese people have enough discretionary income to afford his product. तो वो टंग सेन ली से पूछते हैं कि क्या जो चाइनीज़ लोग हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको अफोर्ड कर पाए. मिस्टर ली थोड़ा सा साइलेंट रहते हैं कुछ टाइम तक और उसके बाद बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट गुड है. ही सेज दैट योर प्रोडक्ट इज गुड, पीपल इन द वेस्ट मस्ट लाइक इट. स्टैन स्माइल्स pleased that Mr. Lee recognizes the quality of his product and he leaves a contract for Mr. Lee to sign. Weeks later, Stan still hasn't received or heard anything. If China is going to be inefficient, he wonders if his company should try to do business there. Now, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि चाइना में स्टैन विलियम्स ने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रपोजल लेके गए मिस्टर ली के पास और मिस्टर ली ने कहा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा तो है बट द ओनली थिंग इज दैट वी रियली डू नॉट नो वेदर द पीपल हियर वुड बी एबल टू अफोर्ड इट और नॉट. और फिर भी स्टैन ने सोचा कि चलो मेरे प्रोडक्ट को इन्होंने अप्रिशिएट किया, इनको क्वालिटी पता चली मेरे प्रोडक्ट की, तो वो अपने प्रोडक्ट को साइन करने के लिए अपने प्रपोजल को वहाँ छोड़कर आ जाते हैं. एंड इवन आफ्टर कमिंग बैक एंड आफ्टर लॉट ऑफ वीक्स, बहुत सारी वीक्स के बाद भी वो कुछ भी नहीं उनको मिलता है या वो सुनते ही नहीं है कुछ. ही नेवर हर्ड एनीथिंग फ्रॉम चाइना. तो उसके बाद ऑफ कोर्स ये जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है ये कुछ बीच में कहीं रह गई बिकॉज यू नो कि अगर बीजिंग में लोग कुछ और समझते हैं, चाइना में लोग कुछ और तरह से कंसीव करते हैं, परसीव करते हैं चीज़ों को. सो इट विल बी सर्टनली नॉट a good idea to have such a kind of a cross-cultural relationships and that too at the business level. Now in India, here's a case study about India. Gloria Johnson is proud of her participatory management style. Gloria Johnson बहुत proud feel करती हैं अपने participatory management style के बारे में. Assigned in Bombay on behalf of her US-based company, she is careful not to give orders but to ask for suggestions. एक बॉम्बे बेस्ड कंपनी में, एक यूएस बेस्ड कंपनी में बॉम्बे में काम करती हैं और वहाँ पर वो एक मैनेजर की पोजीशन होल्ड कर रही हैं और इस पोजीशन पर वो बहुत केयरफुली ऑर्डर नहीं देती हैं लोगों को बट उनके सजेशंस पूछती हैं. बट द एम्प्लॉयज़ रियली सजेस्ट एनीथिंग. लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर बिल्कुल भी बहुत कम क्या बिल्कुल ज़ीरो कुछ भी सजेस्ट नहीं करते. Even a formal suggestion system she established does not work. एक formal suggestion system भी उसने establish किया है लेकिन वो भी काम नहीं करता है. Worse still, she doesn't sense the respect and camaraderie that she felt at the plant she managed in Texas. और same kind of respect नहीं मिलती है उसको लोगों से जितनी वो respect उसको Texas में मिलती थी. Perhaps the people in India just are not ready for a woman boss. क्या ये बात है कि इंडिया में लोग वुमेन बॉस के लिए रेडी नहीं है. सो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं जहाँ पर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कई चीज़ों को द वे दे आर. नेक्स्ट इज मेक्सिको. नाउ दिस थिंग ऑल्सो हैपेंड इन मेक्सिको वंस एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ केस स्टडी. Alan Caldwell is a US sales representative in Mexico City. He makes appointments with Senor Lopez and is careful to be on time. But his host is frequently late. And to save time, Alan tries to get right to business. His host wants to talk about sightseeing, about the Alan's family. Even worse, the meetings are interrupted constantly with the phone calls, long conversations with other people and even customers. Children who come into the office, Alan's first report to his home office is very negative. And he hasn't yet made a sale. Perhaps Mexico just isn't the right place to do business. So this is what happened in Mexico. Now I'm sure that you know a lot about cross-cultural communication and it is very important to hold the knowledge of different cultures and different religions and different beliefs. And of course, cultures are based on religious beliefs, historical origins and of course your own upbringing. So you should be aware of everything
before going ahead and being a part of a big organization. Alright, now towards the end of this session, I'm sure you will be able to answer these questions yourself. Who are good communicators, and explain the communication model. That's all we have for this session. Thank you. Happy learning with We Learn.